Hello everyone. So today we will discuss basis of classification. जहाँ पे last class में छोड़ा था, from there we will start, and today we will try to finish up as many as basis of classification that we can do. Okay. So in the last class we talked about, I think, 3 bases of classification we talked in the last class, and amongst those bases of classification that we have already discussed, there was one basis of classification which was level of organization, and in level of organization we got organ system level of organization, where I told you that several organs, they unite together, they fuse up with one another, okay, forming a chained kind of system called as organ system. Example मैंने elementary canal का तुम लोग को दिया था, that mouth is a different organ, esophagus different organ, stomach different organ, intestine different organ. But when these organ they align, when they queue up, when they get associated with one another, and such association give rise to a organ system, that is our alimentary canal. So inside the organ system level of organization, we know that in our body there are different organ system present. For example, there is digestive system present, circulatory system present, excretory system present, reproductive system present. So in that organ system level of organization, as we know that there are different types of organ systems are present, though we need to make another classification under the organ system level of organization. Okay, so today we are going to start it from here, and then we will move to the other basis. So under the organ system level of organization, depending upon different organ system, we will get some divisions. Okay, so under the organ system level of organization has certain divisions. What are those divisions? That we will study now. So if we take a organ system, like if we take digestive system, okay, if we take digestive system, so what is the thing that we are going to see in the digestive system? Okay, digestive system in animal kingdom is divided into how many types? It is divided into 2 types. And what are those 2 types? One, the first type is called as incomplete digestive system. Okay, one is called as incomplete digestive system. Another one will be called as a complete digestive system. So one is incomplete digestive system, the other one is complete digestive system. Okay, so what is the difference between these two? In incomplete digestive system, we are going to see that the body has a single opening. See the definitions, you will get something similar. Okay, so body has a single opening serving the purpose of both mouth and anus. ये सिमिलर डेफिनेशन हम लोग को कहाँ मिला था? ब्लाइंड सेक में मिला था. That the organism, those who have this kind of body, they will have only a one opening present, which will be serving the purpose of mouth, that is food ingestion, as well as anus, egestion, that is removal of undigested, unabsorbed substance, removal of fecal matter, वो भी एक ही होल के थ्रू होगा. तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों का ब्लाइंड सेक है उन्हीं का इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. समझ में आया ना? तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखे तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग को मिल जाएगा कौन? इसके एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा सिलेंटेरेटा, इसके एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा टीनोफोरा, एज वेल एज इसके एग्जाम्पल में हम लोग को प्लेटी हेलमिन्स ये भी मिलेगा. नाउ यू कैन से दैट सर अगर पूछो कि प्लेटी हेलमिन्स में तो ऑर्गन लेवल है, तो प्लेटी हेलमिन्स में कैसे करके, है ना, कि प्लेटी हेलमिन्स में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे? प्लेटी हेलमिन्स में स्टोमक डेवलप होता है, लेकिन कोर तो एक ही रहेगा ना. अगर हम लोग एक प्लेटी हेलमिन्स को ले, सपोज दिस इज अ प्लेटी हेलमिन, लेकिन इसके बॉडी में 2 अलग पोर नहीं है, इसके बॉडी में एक ही पोर है, यहाँ पे एक ही पोर है, एंड यहाँ पे इसका स्टोमक है, लाइक दिस. मान लेते हैं ये स्टोमक है. समझ में आया ना? तो स्टोमक है तो ऑर्गन लेवल पे तो चला गया है, एक ऑर्गन बन गया. स्टोमक इज एन ऑर्गन, बट उस स्टोमक में खाना अंदर जाने का और बाहर निकलने का तो ओपनिंग एक ही है. हेंस प्लेटी हेलमिन जो है वो भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शो करेगा. ठीक है, सो दीज आर दी ऑर्गेनिज्म दोज हु शो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इसी डेफिनेशन का ठीक ऑपोजिट डेफिनेशन इसका होगा. इसमें क्या हो जाएगा कि
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होगा? जहां पे हम लोग देखेंगे बॉडी हैज बोथ माउथ एंड द बॉडी हैज बोथ माउथ एंड एनस व्हेन देयर इज दिस काइंड ऑफ सिस्टम कि देयर आर टू ओपनिंग प्रेजेंट, ठीक है। खाना इधर से घुसेगा, फीकल मैटर या पॉटी उधर से निकलेगा, तो जिसमें बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट है उसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम लोग एग्जांपल लिखे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल में एस्केल मीन्स टू chordates. So Eschal means two chordates. They have two separate opening in their body and जिनके भी बॉडी में दो सेपरेट ओपनिंग है, फंक्शनल है, एक तरफ से खाना आ रहा है, दूसरा तरफ से खाना निकल रहा है, ठीक है। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखें तो ट्यूब विद इन ट्यूब बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया है ये तुम लोग का क्लियर हुआ है। यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम इट, ओके। ठीक है, तो जो नेक्स्ट बेसिस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मोड ऑफ डाइजेशन। तो मोड ऑफ डाइजेशन में हम लोग को मिलेगा कि एनिमल्स शोज यू कैन से थ्री टाइप्स ऑफ मोड ऑफ डाइजेशन, ठीक है। इट शोज थ्री टाइप्स ऑफ मोड ऑफ डाइजेशन। तो व्हाट आर दोस थ्री टाइप्स, ठीक है, ऑफ मोड ऑफ डाइजेशन? क्या क्या है? थ्री टाइप्स, ठीक है। थ्री टाइप्स में जो पहला टाइप हम लोग को मिलेगा, ठीक है, वो है इंट्रा सेलुलर digestion. This is the first type that we are talking out here. So what is intracellular digestion? Intracellular digestion when the solid food is digested, when the solid food is digested inside the cells, ठीक है ना। तो दिस इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज जस्ट लाइक द डाइजेशन व्हिच द एमीबा डज, ठीक है ना। वो क्या करता है? सॉलिड फूड को ट्रैप करता है, अपने अंदर लेता है और अपने अंदर डाइजेस्ट कर देता है। इंट्रा विद इन, सेलुलर सेल के अंदर। सो यहाँ पे डाइजेशन क्या हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। सेल सॉलिड फूड को सराउंडिंग जगह से ले रहा है, लेके अपने अंदर फूड वेक्यूल्स में उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर रहा है। तो अगर डाइजेशन सेल के अंदर होगा, इस तरीके के डाइजेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एंड ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन एनिमल किंगडम में कौन शो करता है? एनिमल किंगडम में इंट्रासेलुलर डाइजेशन is shown by whom? The first phylum, that is sponges, as well as प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में तुम लोग को एमीबा, एंटामीबा ये सब मिलेगा, लेकिन प्रोटोजोआ हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पोंजेस तुम लोग कंसीडर कर लो। नेक्स्ट जो नेक्स्ट डाइजेशन है वो है बोथ इंट्रासेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। तो इंट्रा का मतलब जिस तरीके से इंट्रा का मतलब है सेल के अंदर, उसी तरीके से एक्स्ट्रा का मतलब क्या होगा? सेल के बाहर, ठीक है ना। तो देयर आर सम एनिमल्स, स्पेशली दोज एनिमल्स जिनका ब्लाइंड सेक काइंड ऑफ बॉडी है, ठीक है ना। वो एनिमल्स क्या करते हैं? सपोज एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसका ब्लाइंड सेक काइंड ऑफ बॉडी है, ठीक है ना। तो जिनका ब्लाइंड सेक काइंड ऑफ बॉडी है वो लोग क्या करेगा? वो लोग बाहर से जो फूड है उस फूड को इस स्पोर के थ्रू अंदर घुसाएगा, ठीक है। अच्छा, अंदर घुसाने के बाद हमको पता है कि ब्लाइंड सेक बॉडी जो है वो देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे ही इस फूड को अंदर लेगा, ये फूड इधर जाएगा, इस जगह पे जाएगा। ये जो जगह है, ठीक है ना, ये जो अंदर का जो जगह है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? ये अंदर का जगह को हम लोग बुलाते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। तो ब्लाइंड सेक बॉडी जिनका है, उनका इस पोर के अंदर का ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये जो फूड अंदर घुसा है, ठीक है, ये जो फूड अंदर घुसा है, ये जो फूड अंदर घुसा है, ये फूड है क्या? ये फूड मान लेते हैं है पॉलीसैकेराइड। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। अब क्या होगा? जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म फूड को अपने अंदर लेगा, सबसे पहला चीज क्या होगा? यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, इस तरीके से ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग में इस तरीके से कुछ सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। वो सेल इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में क्या रिलीज करेगा? ENZ। ENZ माने एंजाइम्स। ये सेल को जैसे पता चलेगा यहाँ पे कोई फूड आके घुसा है, ये सेल यहाँ से एंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है ना।
ये एंजाइम, ये जो फूड है जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म में है, ये एंजाइम आके इस पॉलीसेकेराइड के ऊपर एक्ट करेगा। वी नो एंजाइम्स एक्ट्स ऑन फूड, एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट। इस पॉलीसेकेराइड के ऊपर यहां से जो एंजाइम छोड़ा गया है वो आके एक्ट करेगा, एक्ट करके इस फूड को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रेक डाउन करेगा, और उस ब्रेक डाउन करने की वजह से ये पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं डाइसेकेराइड, है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो पहला डाइजेशन किधर हुआ? पहला डाइजेशन सेल के बाहर हुआ। ठीक है ना, एक कैविटी में हुआ, लेकिन सेल के अंदर तो नहीं हुआ। सेल ने एंजाइम बाहर छोड़ दिया और सेल के बाहर हुआ डाइजेशन। समझ में आया? तो जब डाइजेशन सेल के बाहर होता है, इस तरीके का किसी जगह पे होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बुलाते हैं। तो ये जो स्टेप हुआ, ये स्टेप क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुआ। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होने के बाद ये जो फूड है, इस फूड को तो ये एंजाइम तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? हम लोग बोल सकते हैं तोड़ने के बाद फूड छोटा यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ये जो यूनिट है ये भी फूड है, लेकिन ये क्या है? ये फूड है डाइसेकेराइड। अब ये जो फूड है, इस फूड को क्या करेगा? ये जो सेल है, ये सेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान से सुनो, पहले इधर से खाना घुसा, उसके बाद सेल ने एंजाइम रिलीज किया। उस एंजाइम ने इस पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया। तो ये जो तोड़ना हुआ, फूड का जो ब्रेकडाउन हुआ, वो कहां हुआ? सेल के बाहर हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर। उसके बाद जो टूटा हुआ फॉर्म है, दैट इज डाइसेकेराइड, उस डाइसेकेराइड को इस सेल ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया और अपने अंदर डाइजेस्ट कर देगा। तो सेकंड स्टेप में डाइजेशन कहां हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। तो क्या डाइजेशन हो रहा है? इंट्रासेलुलर। So there are many animals जो क्या करता है? फूड को अपने गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में घुसाता है, एंड पहला डाइजेशन इट डज इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एंड द मोमेंट it is broken, those broken food will be absorbed by the cells which is lining the gastrovascular cavity, lining the gastrovascular cavity. Those cells will absorb that food and then it will digest it inside itself. So both extracellular as well as intracellular digestion. So इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा कौन? सिलेंटेरेटा। इसके एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा कौन? टिनोफोरा। ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिन्स में मैंने क्या बोला? स्टोमक डेवलप हो जाता है, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी स्टोमक के अंदर डाइजेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। फिर से सेल के अंदर घुसा के मतलब डाइजेस्ट करने का जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन में ऐसा सपोज, इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये कोई एक प्लेटीहेल्मिन है, ठीक है, तो इसका एक ही ओपनिंग है, लेकिन इसका यहाँ पे एक स्टोमक जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है ना। तो ये जो फूड अंदर लेगा, यहाँ पे जो फूड आएगा, उस फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन इधर ही होगा। इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन कंप्लीट ब्रेकडाउन इधर होगा एंड फिर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होगा। इनके जैसा नहीं होगा कि पहला इधर तोड़ा, बाद में सेल एब्जॉर्ब करके अपने अंदर वापस से तोड़ रहा है। ऐसा नहीं होगा इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन। समझ में आया ना। ये जो सेल है, ये सेल इस डाइसेकेराइड को एब्जॉर्ब करेगा करके, ये जो सेल है, ठीक है ना, ये जो सेल है यहां पे मैं लिख देता हूं, सेल एब्जॉर्ब्स डाइसेकेराइड एंड ब्रेक्स इट ठीक है, ब्रेक्स इट, यहां का पोर्शन इधर लिख देता हूं, ब्रेक्स इट इंट्रासेलुलरली इनटू मोनोसेकेराइड। देखो समझ में आया कि नहीं। पहले जो फूड इसने एब्जॉर्ब किया था वो फूड पॉलीसेकेराइड के लेवल पे था, यहां से एंजाइम निकला, पोली को डाई में कन्वर्ट किया, डाई को इस सेल ने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके अपने अंदर उस डाई को तोड़ दिया वापस और बना दिया क्या? मोनोसेकेराइड। इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन, जो फूड प्लेटीहेल्मिन ने खाया वो पॉलीसेकेराइड ही था, और उस पॉलीसेकेराइड का डाइसेकेराइड में ब्रेक करना, डाइसेकेराइड का मोनोसेकेराइड में ब्रेक करना, ये सारा का सारा चीज यहां पे ही होगा। इनके जैसा नहीं होगा कि आधा कैविटी में और आधा सेल के अंदर। इनका पूरा का पूरा पोली से डाई, डाई से मोनो, वो सारा का सारा इधर होगा और फिर डायरेक्ट मोनो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है ना। तो इसलिए प्लेटीहेल्मिन जो है वो बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन शो नहीं करेगा। प्लेटीहेल्मिन शो करेगा एक्सक्लूसिवली एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन पूरा का पूरा एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन ही करेगा। ठीक है। हमारा भी कैसा है, हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन वो हमारे एलिमेंट्री कैनल के ल्यूमेन में होता है। ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनल का जो
बीच का जगह है, उस ल्यूमेन में ही सारा का सारा ब्रेक डाउन होता है। एंड फिर हम लोग क्या करते हैं, उस ल्यूमेन से उस ब्रेक डाउन प्रोडक्ट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं करते कि एब्जॉर्ब करके फिर अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंप्लीट डाइजेशन एलिमेंट्री कैनल के अंदर हो रहा है, तो हमारा भी डाइजेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। ठीक है, तो ये है पहला दो टाइप। ठीक है, तुम लोग नोट्स बना लेना यहां से। और जो तीसरा टाइप है, उस तीसरा टाइप को भी मैं फटाफट यहाँ पे लिख के फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। जो थर्ड टाइप है, वो थर्ड टाइप में हम लोग को मिलेगा सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट एंटायर फूड is broken down in the gastrovascular cavity and directly absorbed by the cells। ठीक है ना, जो यहाँ पे समझाया कि पॉलीसेकेराइड घुसेगा, उस पॉली को डाई में कन्वर्ट करना और फिर डाई को मोनो में कन्वर्ट करना। ये पूरा का पूरा इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में होगा और फिर मोनो को डायरेक्टली बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं है कि सेल उसको लेके फिर अपने अंदर तोड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, इसका एग्जांपल में हम लोग प्लेटीहेल्मिन्स टू कॉर्डेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो प्लेटीहेल्मिन्स टू कॉर्डेट्स दे शो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये है दूसरा ऑर्गन सिस्टम का एक टाइपिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन। अब हम लोग मूव करेंगे टू द थर्ड टाइप। आई होप ये समझ में आया है, इसका तुम लोग नोट बना लेना। ठीक है, सो द नेक्स्ट system that we are going to talk is circulatory system। and circulatory system में भी हम लोग को क्या मिलेगा, टू टाइप्स यहाँ पे भी हम लोग को मिलेगा। तो टू टाइप्स में जो पहला टाइप है उसको हम लोग बुलाते हैं open circulatory system and then there will be another type which will be called as closed circulatory system। तो two type, one open one closed। ठीक है, so now let's understand what is open type of circulatory system। यहाँ पे हम लोग definition इसका लिखेंगे that when the blood flows directly into the body cavity, ठीक है, and directly comes in contact with the cells। ठीक है, नो, ये कैरेक्टर लिख रहा हूं, नो कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन देम। ठीक है, सो इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि बॉडी कैविटी क्या है। ठीक है ना, सो बॉडी कैविटी को समझाने के लिए मैं एकदम सिंपल सा एक चीज से तुम लोग को समझा रहा हूं। पकड़ लो, ये कोई एक इंसान है। ठीक है, ठीक है, इंसान का स्ट्रक्चर, हाथ, मेन बॉडी, यहाँ पे मुंडी। ठीक है ना, अच्छा, तो ये जो उसका ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है, इस ड्राइंग में ये जो जगह है, ठीक है ना, इस जगह में ही हमारा क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनल, लंग्स, स्टोमक, सब तो यही पे प्रेजेंट है। यहां से हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनल ऐसे आ रहा है, एलिमेंट्री कैनल ऐसे आके फिर एलिमेंट्री कैनल इस तरीके से स्टोमक का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो स्टोमक ऐसे है यहाँ पे इंटेस्टाइन होगा, ये सब स्टोमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स जो भी यहाँ प्रेजेंट है वो हमारे एक बॉडी ट्रंक के अंदर है कि नहीं। ये जो हमारा बॉडी है ये बेसिकली क्या है, अंदर से अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली एक क्या है, कवरिंग जैसा है। और उस कवरिंग के अंदर सारा ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि हार्ट, लंग्स, है ना, एलिमेंट्री कैनल, वो सब क्या है, इस ट्रंक के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो ट्रंक है, इस ट्रंक का अंदर का जो जगह है, उस अंदर के जगह को हम लोग क्या बुलाते हैं, उस अंदर के जगह को हम लोग बुलाते हैं बॉडी कैविटी। सो दिस इज योर बॉडी कैविटी। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क देके लिख देता हूं दैट बॉडी कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलोम।
ठीक है, और अभी आगे जाके हम लोग का एक सीलोम के ऊपर में भी डिस्कशन आएगा, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज बॉडी कैविटी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, यहाँ बोला जा रहा है कि जब हार्ट पंप करेगा, ठीक है ना, तो जब हार्ट, बॉडी कैविटी समझ में आया ना, जो हम लोग क्या बोले कि ये वाल से ये वाल अंदर का जो जगह है, ठीक है ना, हमारे ये जो हमारा अंदर का जगह है जहाँ पे सेवरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग बॉडी कैविटी, सीलोम या फिर विसेरा, ये सब नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है ना, और उसमें ये सब ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट है, तो दैट ट्रंक रीजन इट इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी, ठीक है। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम में जो डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है कि ब्लड डायरेक्टली बॉडी कैविटी में जाता है, ये क्या लोचा है? ये लोचा ये है कि जब इन एनिमल्स का हार्ट पंप करेगा तो वो जो ब्लड है वो ब्लड हार्ट से निकलेगा किसमें? आर्टेरी में, ठीक है, और आर्टेरी में निकलने के बाद आर्टेरी से जब ये ब्लड बाहर निकलेगा तो ये ब्लड क्या होगा? डायरेक्टली बॉडी कैविटी में आएगा। समझ में आया ना? इसमें आर्टेरी के आगे का जो ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट नहीं है। जनरली ब्लड वेसल्स का जो पैटर्न है, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को देखने को मिलेगा, वो पैटर्न बेसिकली क्या है? वो पैटर्न ऐसा है कि हार्ट पंप करेगा तो ब्लड निकलेगा कहां पे? आर्टेरी, ये एक ब्लड वेसल है, बड़ा ब्लड वेसल। आर्टेरी फिर डिवाइड हो जाता है एंड सेवरल ब्रांचेस का फॉर्म करता है। ये जो ब्रांचेस का फॉर्म आर्टेरी से बनता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? आर्टेरियोल्स। सो ऑब्वियसली आर्टेरी से ब्रांच होकर आर्टेरियोल बना है, तो आर्टेरियोल्स आर स्मॉलर देन आर्टेरी। फिर आर्टेरियोल्स फर्दर ब्रांच करेगा, मतलब एक एक आर्टेरियोल फर्दर ब्रांच करेगा, तब जाके फॉर्म होता है कौन? कैपिलरीज। एंड कैपिलरीज हमारा क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे थीन, फाइन, एनीथिंग यू कैन से, ब्लड वेसल को हम लोग कैपिलरीज बुलाते हैं। ये कैपिलरीज जो है, ये कैपिलरीज देखने में कुछ ऐसा होगा, ये कैपिलरीज देखने में कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, और बहुत ही पतला होता है। तो जो सेल होता है, ठीक है ना, उस सेल में क्या हो जाएगा? इन कैपिलरीज से न्यूट्रिशन ऐसे जाएगा, ठीक है ना, और सेल को जो वापस दे देना है वो ऐसे सेल दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कि ब्लड आर्टेरी से जा रहा है, आर्टेरियोल्स में जाएगा, आर्टेरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी सेल के साथ नेसेसरी एक्सचेंज करेगा, फिर कैपिलरीज जुड़ जाता है, जुड़ के बनाता है क्या? कैपिलरीज जुड़ के बनाता है वेन्यूल्स, वेन्यूल्स वापस जुड़ के बनता है वेन्स, एंड वेन्स ब्लड को वापस लेके आता है किधर? वापस लेके आता है हार्ट में, ठीक है। तो जो ब्लड हार्ट ने पंप किया वो वापस घूम के हार्ट में आया, और ब्लड कभी भी सेल का डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया, ब्लड तो इसी नेटवर्क के थ्रू घूम रहा है। हार्ट से पंप हुआ, यहां गया, इसका ब्रांच बन गया, ये इसका ब्रांच बन गया, ये वही ब्रांचेस सेल के पास जाता है, पास से होते हुए वापस जुड़ के ये वापस जुड़ के ये, फिर ब्लड वापस हार्ट में आ गया। लेकिन ये वाला जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज आर वेरी थिन एंड फाइन, तो जब ब्लड कैपिलरीज के थ्रू गया तो सेल के पास वो ब्लड गया और नेसेसरी एक्सचेंज किया, लेकिन ब्लड वेसल के अंदर ही था, वो ब्लड कभी भी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया। इनमें क्या होगा? हार्ट से आर्टेरी, आर्टेरी से क्या हो जाएगा? ब्लड डायरेक्टली क्या हो जाएगा? बॉडी कैविटी में चला जाएगा। और जैसे ये बॉडी कैविटी में जाएगा तो ये ब्लड डायरेक्टली क्या होगा? सेल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, ब्लड डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में आएगा, और ब्लड सेल को डायरेक्टली जो देना है देगा, सेल से ब्लड डायरेक्टली जो लेना है लेगा, और ये नेसेसरी एक्सचेंज करने के बाद ये ब्लड आके घुसेगा वेन्स में, वेन से वापस हार्ट में। समझ में आया ना? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड। दिस इज क्लोज्ड, ठीक है ना। इसको क्लोज क्यों बोला गया है? बिकॉज ब्लड इज ऑलवेज एनक्लोज्ड, है ना, ब्लड हमेशा एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल के थ्रू घूम रहा है और कभी भी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, ब्लड बॉडी कैविटी में भी नहीं जा रहा है, दैट इज क्लोज। यहाँ पे ब्लड हार्ट से निकला आर्टेरी, आर्टेरी के आगे का सिस्टम है ही नहीं, ना आर्टेरियल है ना कैपिलरी है ना, ये सब है ही नहीं। आर्टेरी से ब्लड निकला डायरेक्ट बॉडी कैविटी में, तो ब्लड डायरेक्टली सेल के कांटेक्ट में आया, सेल को जो देना है दिया, सेल से जो लेना है लिया, और लेने के बाद वो ब्लड वापस भेन से होते हुए हार्ट में आ गया। बीच का जो सिस्टम है वो है ही नहीं। समझ में आया? इस तरीके को हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, और यहाँ पे ब्लड डायरेक्टली, ठीक है, ब्लड फ्लोज डायरेक्टली इनटू द बॉडी कैविटी एंड डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद द सेल्स, एंड सेल के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज करता है, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद द सेल्स, एंड यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो डज द नेसेसरी एक्सचेंज, ये लिख के रख सकते हो, ठीक है ना। समझ में आया होगा? तो अगर हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम लोग एग्जांपल लिखे
तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किन में प्रेजेंट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है आर्थ्रोपोडा में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है मोलास्का में, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोलास्का में भी एक बात है, मोलास्का में भी एक बात है, ये मैं अभी फिलहाल मिटा देता हूँ, ठीक है। तुम लोग ये मैं वापस ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग मोलास्का जो मैंने लिखा है, तो एग्जाम्पल्स को अच्छे से हम लोग इधर लिखते हैं। एग्जाम्पल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, फिर होगा एक मोलास्का जिनका नाम है नॉन सेफालोपोड मोलास्का, ठीक है। फिर हम लोग को मिलेगा मोलास्का के बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हम लोग को मिलेगा फाइलम हेमिकॉर्डाटा में, और हेमिकॉर्डाटा के बाद हम लोग को फिर से ओपन मिलेगा यूरोकॉर्डाटा में, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में ओपन है, ठीक है, एनलिडा में क्लोज होगा। नॉन सेफालोपोड मोलास्क, ये नॉन सेफालोपोड क्या है, देखो जो फाइलम मोलास्का है, ध्यान से समझना, जो फाइलम मोलास्का है हमको पता है फाइलम के नीचे क्या आता है, क्लास आता है, ठीक है ना। तो फाइलम मोलास्का का टोटल 7 क्लास है, ठीक है। अंडर फाइलम मोलास्का देयर आर टोटल 7 क्लास। ये 7 क्लास में जो 7th क्लास है, वो 7th क्लास का नाम क्या है, उस 7th क्लास का नाम है सेफालोपोडा। समझ में आया, 7 क्लास है, 7 क्लास में जो 7th क्लास है, 7वां जो क्लास है, उसका नाम क्या है, सेफालोपोडा। तो बाकी जो 6 क्लास है उनको क्या बुला सकते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं बोलो, ठीक है। तो जो 7th क्लास में होगा, 7th क्लास में जितना भी एनिमल्स है उनको क्या बुलाएंगे, सेफालोपोड मोलास्क। और जो बाकी 6 क्लास होगा, क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, 6, इनको क्या बुलाएंगे, नॉन सेफालोपोड मोलास्क। तो इन लोगों में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो है ओपन, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्लोज, कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, ठीक है। इसका नोट बना लेना, ठीक है। So this is the definition of closed circulatory system, and here you can see what I have already explained you over here few minutes back regarding कि open कैसा है and closed कैसा है। कंपैरिजन में जो यहाँ पे ड्राइंग किया था कि हार्ट, आर्टेरी, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन, वापस हार्ट। और कैपिलरीज में जब ब्लड जाएगा तो वो सेल के साथ एक्सचेंज करेगा, ब्लड कभी भी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, when blood flows through the network of blood vessels and never comes in direct contact with the cells। यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट है, उसमें एब्सेंट है, ठीक है। ये है तुम्हारा एग्जांपल ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसका नोट बना लेना, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और उसमें देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इसका नोट बना लो। So this is your next part, the reproductive system, okay. And in reproductive system we can see the system is divided into 2 types. One is called as unisexual or dioecious, another which is called as bisexual, monoecious और hermaphrodite। तो इनका differences क्या है, unisexual और dioecious का मतलब है मेल फीमेल अलग अलग, that means मेल का बॉडी अलग होगा, फीमेल का बॉडी अलग होगा। मेल के बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स विल बी देयर, फीमेल के बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी देयर, ओके। सो दैट मीन्स मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट एंड morphologically as well as anatomically different, ठीक है। आई होप ये तुम लोग को समझ में आया है। मेल एंड फीमेल थोड़ा अलग अलग है, ठीक है, देखने में अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा। मेल देखने से मेल, फीमेल देखने से फीमेल समझ सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली अपेयरेंस वाइज मेल थोड़ा अलग होगा, फीमेल अलग होगा। एनाटॉमिकली मेल के बॉडी के अंदर होगा टेस्टिस, फीमेल के बॉडी के अंदर होगा ओवेरी। तो इस तरीके से 2 अलग अलग इंडिविजुअल हो जाएगा, एक मेल एक फीमेल, ठीक है ना। तो
इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखूं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स का, तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल में हम लोग को मिल जाएगा एस्केल मीन्स, ठीक है, एस्केल मीन्स टू, हम लोग मोटा मोटी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस्केल मीन्स टू कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन कोई कोई होगा जो ये कैरेक्टर शो नहीं करेगा। अब एक्सेप्शन में तुमको मिल जाएगा कौन, एक्सेप्शन में तुमको मिलेगा, अच्छा जो एक्सेप्शन में मिलेगा वो हम लोग उधर लिख लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा फ्रेम है। इन फाइलम्स में हम लोग को यूनिसेक्सुअल फॉर्म देखने को मिलता है, मेल अलग फीमेल अलग। बाइसेक्सुअल या मोनोशियस जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होगा, एक ही बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने आर्थ्रोम देखा है, अब आर्थ्रोम देखा है, लीच देखा है। अब आर्थ्रोम और लीच कैसा है, उनका एक ही बॉडी के अंदर टेस्टिस भी है और एक ही बॉडी के अंदर ओवेरी भी है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसका एक ही बॉडी के अंदर टेस्टिस भी है और ओवेरी भी है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, बाइसेक्सुअल बुलाते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एमआरएस का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट inside the body of a single individual, ठीक है, कि एक ही इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर मेल वाला पार्ट भी है, फीमेल वाला पार्ट भी है। तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम लोग ये सब नाम से बुलाते हैं। इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखूं, इसके एग्जांपल में हम लोग को मिल जाएगा स्पोंजेस, इसमें हम लोग को मिलेगा सिलेंटेरेटा, ठीक है ना, ये सब हम लोग को मिलेगा, टिनोफोरा मिलेगा, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्स मिलेगा। फिर यहाँ पे जो मैंने बोला कुछ कुछ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में तुम लोग यहाँ पे एक एनेलिडा है जिसका नाम है नेरिस, ठीक है ना, तो ये एनेलिडा जो है नेरिस, ठीक है ना, नेरिस नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल में तुम लोग लिख सकते हो आर्थवॉर्म, यहाँ पे एग्जाम्पल में तुम लोग लिख सकते हो लीच, ठीक है, ये सब तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है तुम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी डिवीजन है वो मैंने यहाँ पे तुम लोग को ऐसे करके समझा दिया। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझेंगे, ठीक है, ये तुम लोग नोट बना लेना, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट बेसिस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि एक ऑर्गेनिज्म अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे ऑपरेट करता है, या फिर उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का सिस्टम क्या है, वो एसेक्सुअली करता है या सेक्सुअली करता है, कौन एनिमल कैसे करता है, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग यार। तो कुछ कुछ एनिमल ऐसा है जो लोग बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सिचुएशन फेवरेबल है, सीजन फेवरेबल है तो क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सीजन फेवरेबल नहीं है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके भी काम चला सकते हैं। तो ऐसा कुछ कुछ एनिमल्स है जो एसेक्सुअल भी करता है अनफेवरेबल कंडीशन में एंड सेक्सुअल भी करता है फेवरेबल कंडीशन में। यहाँ पे हम लोग अगर एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा स्पोंजेस, ठीक है, इसके बाद हम लोग को मिलेगा फ्यू सिलेंटेरेट्स, फ्यू टिनोफोरा, ठीक है, कुछ कुछ सिलेंटेरेट है, कुछ कुछ टिनोफोरा है जो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करने का कैपेसिटी रखता है, ठीक है। इसके बाद एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब वो कौन कौन सा एनिमल है जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही काम चलाता है। तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम चलाने वाला एनिमल्स में, जैसे मैंने यहाँ पे फ्यू लिखा है, तो क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखे तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा सीधा फाइलम टिनोफोरा से लेके, ठीक है, एकदम कॉर्डेट्स तक। तो टिनोफोरा से कॉर्डेट्स तक का जो ऑर्गेनिजम्स है ये लोग सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, ठीक है। टिनोफोरा में ऐसा कुछ टिनोफोरा है, बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसा टिनोफोरा है जो क्या कर सकता है, जो एसेक्सुअल भी कर सकता है एंड सेक्सुअल भी कर सकता है। एंड सिलेंटेरेटा में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ दी लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ दी। तो सिलेंटेरेटा में ऐसा कुछ सिलेंटेरेटा ही है जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, नहीं तो ज्यादातर सिलेंटेरेटा बोथ सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों कर सकता है।
टिनोफोरा में कुछ ही टिनोफोरा है जो बोथ सेक्सुअल एसेक्सुअल कर सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टिनोफोरा सिर्फ सेक्सुअल करता है। और टिनोफोरा से लेके एकदम लास्ट तक, दैट इज कॉर्डेट्स तक, हम लोग को सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? देयर इज अ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लेनारिया, और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस ऑर्गेनिज्म एज डुगेशिया, एंड ये ऑर्गेनिज्म एक प्लेटीहेल्मिन्थ है। ठीक है, ये प्लेटीहेल्मिन्थ है, और ये ऑर्गेनिज्म तो सबसे हटके है, क्योंकि ये करता है ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और अगर तुम लोग मुझे पूछो कि कौन सा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ये करता है बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन इज अ प्रोसेस वेयर वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म टू। ठीक है, एक सेल है वो डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड करके दो सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं, बाइनरी दो। ठीक है ना। सो ये एक एक्सेप्शन है, बाकी ये सब पॉइंट्स तुम लोग को लिखना है। सो दिस आई विल कीप एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पार्ट 2। पार्ट 3 में इसके आगे का मैं करूँगा, और पार्ट 3 शायद मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। तो तुम लोग कल ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म कर सकते हो। उसके नेक्स्ट क्लास से वी विल मूव इनटू द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, फाइलम स्पॉन्जेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बारिश हो रहा है, टाटा।